So, hi students. Today we will discuss about keywords and question answers of nutrition in animals. So, here's the keywords. The first keyword is absorption. Okay, the absorption is a process in which the digested food passes through blood vessels from the wall of intestine, from the wall of small intestine. Okay. तो absorption क्या लिखोगे? It is a process in which the digested foods passes through blood vessels from the wall of small intestine. ठीक है? Next है amino acids. Amino acid is a type of digested food which is the simplest part of protein. Okay? Second लिखोगे. Third है amoeba. Amoeba is a microorganisms which has no shape. ठीक है? या which has no fixed shape and it captures their foods by phosphate. Okay, तो अमीबा का ये हो जाएगा. It has a nucleus. बहुत कुछ डाल सकते हो. It has a nucleus and two vacuoles. ठीक है, that is food vacuoles and contractile vacuole. ठीक है. Next है assimilation. तो assimilation क्या है? It is a process in which the cells of the body taken digested foods through the blood vessels. Okay, for their growth and to get energy and to repair the damaged part of the cell. Okay. That is assimilation. What is bile? Bile is a digestive enzyme secreted by liver, which is used to break down the fat present in food. Okay, this is bile. Buccal cavity. Buccal cavity is the first digestive tract of animals. ठीक है, which contains the tongue and salivary glands. Okay. तो बकल कैविटी में इतना ही लिखना है और ज़्यादा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है. प्रोसेस आप लिख सकते हो. It slightly digest the foods. They slightly digest the foods. ठीक है, it digests starch present in the foods through the action of saliva. ठीक है, तो लिख सकते हो. Next है आपका canine. Canine क्या होता है? Canine is a type of teeth. Okay, canine is a type of teeth. It is used to tear and parsing the foods. Okay, तो canine में इतना लिखना है. Next है cellulose. The grass which is rich in carbohydrates is known as cellulose. ठीक है. Next है digestion. The digestion is a process in which the complex food substances breaks into simpler substances. Okay, by the action of different digestive enzymes. That is digestion. Next है egestion. Egestion क्या है? The throughout of undigested food from body. ठीक है, the throwout of undigested food from body is known as egestion. Okay, next है fatty acid. Fatty acid is also a digested food into the body, which is the simplest form of fat present in the food. Okay, it is broken by pancreatic juice. Okay, इतना लिख सकते हो आप. Food vacuoles क्या है? Food vacuoles is a bubble of waters which contains food particles captured by amoeba. Okay. Next is gallbladder. Gallbladder is a pouch-like structures located in the liver, which store the temporarily bile juice secreted by liver. Okay. Glycerol. Glycerol is also a type of digested food. Okay, into the body, which gets broken by fat with the action of pancreatic juice. Okay, next is incisors. Incisors is a type of teeth. Okay, the number of incisors in the buccal cavity is 8. 4 incisors in lower jaw, 4 incisors in upper jaw. The front teeth of buccal cavity is known as incisors. It is used to cut or bite the food. Okay. Next ingestion. Ingestion, the process of taking food into the body is known as ingestion. Next है आपका liver. Liver is the largest gland of the body, which is located above abdomen of right side. ठीक है. It secretes bile. Okay, and which is used to break down the fat present in the food. Okay. Next है आपका milk teeth. Milk teeth क्या है? The first set of teeth during the childhood. Okay. The first set of teeth during the childhood is known as milk teeth.
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोलर। मोलर इज ए टाइप ऑफ टीथ which is used to grind and chewing the food. Okay, there are 8 molars in the buccal cavity, 4 molars in the lower jaw, 4 molars in the upper jaw. Okay, next है आपका permanent teeth. Okay, the second clone of teeth. Okay, after milk teeth. ठीक है, the second row of teeth after milk teeth is known as permanent teeth. Okay, next है esophagus. Esophagus is a digestive tract, okay, which helps to carry slightly digested food from buccal cavity to stomach. Okay, next है pancreas. Pancreas is a gland which is found below the stomach. Okay, it secretes pancreatic juice which is used to digest the fat present in the body. Okay, next है आपका premolars. Premolars is a type of teeth which is used to grind or chew the foods. Okay, the number of premolars in buccal cavity is how much? 12. 6 premolars in lower jaw, 6 premolars in upper jaw. Okay, next है आपका pseudopodia. Pseudopodia is a false pit which is used to capture the food particles by amoeba. It is known as pseudopodia. Next है rumen. Rumen is the first compartment of stomachs in the grass-eating elements which is used to store the cellulose and slightly digested aids by the help of by the action of certain bacteria. Okay, ruminants क्या है? Ruminants is it is a animals which has rumen and which helps to digest partially digest the cellulose due to the certain bacteria. Is that type of animals is known as ruminant. Okay, next are ruminations. The slightly digested cellulose in the rumens is brought back to the mouth for the further chewing. Okay, this process is known as rumination. Next है आपका salivary gland. Salivary gland secretes in the it is a gland which secretes saliva, okay, in the buccal cavity, which is used to digest the starch present in the food. Okay, next है villi. Villi क्या है? It is a tiny finger shaped outgrowths present in the inner part of the small intestine. Okay, which helps to rapid absorption. Each villus is the plural form of villus. Okay, so each villus has a network of blood capillaries. Okay, so it is used to rapid absorptions of digested foods in the blood vessels. Okay, next is saliva. Saliva is a digestive enzymes secreted by salivary glands in buccal cavity, which is used to digest the starch present in the food. Okay, so I hope कि आपको all keywords समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगर आपको कोई भी keywords में कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका fill in the blanks. The main steps of nutrition in humans are. तो main steps आप लोग 5 steps मैंने बताया था, ingestion, digestion, absorption, assimilation और digestion. तो आपको ये 5 steps इस पे भर देना है. ठीक है, next है the largest glands in the human body is liver. Okay, liver जो है largest gland होता है, तो liver यहाँ पे लिख देना है आपको. Next है आपका the stomach release hydrochloric acids and dash juices which acts on the foods. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या होता है? स्टमक में पाया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी लाइक फिंगर लाइक आउटग्रोथ स्पॉट. तो मैंने अभी लाइक विली का डेफिनेशन बताया, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है कहाँ? इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो उसको हम यहाँ पे विली भर देंगे. ठीक है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड्स इन द
अमीबा कहाँ अपना फूड को डाइजेस्ट करता है? इन द फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल से यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपका पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक, ठीक है। क्या डाइजेशन स्टार्ट्स स्टोमक में होता है? तो फॉल्स है ये, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन तो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड्स विद सलीवा, तो यस ट्रू है ये, ठीक है, टंग सलीवा को फूड से मिलाता है। नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल्स, ये भी सही है, गॉल ब्लैडर आपका लिवर में प्रेजेंट होता है और ये टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। नेक्स्ट है द ruminants brings back swallows grass into their mouths and chew it for some time, तो ये भी सही है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? rumination कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है हमारा, यानी कि सिर्फ पहला वाला फॉल्स है, बाकी तीनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होता है? फैट्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पे कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। एंड बाइल जूस से भी क्या होता है? बाइल जूस से ये एकदम टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर डाइजेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस से, जो कि उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उसमें वाटर जो प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द टर्म्स आइटम्स ऑफ फॉलोइंग्स वन विद दोज गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को किससे कैसे मैच करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन किस में टूटेगा? तो अमीनो एसिड्स में। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ओके। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स का नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड, फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वेली, ठीक है। वेली क्या होता है? तो वेली इज ए फिंगर शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ, फिंगर शेप्ड लाइक आउटग्रोथ इन द इनर wall of the small intestines, which is used to rapid growth of digested foods through blood vessels, okay। तो ये कहाँ पे देखिए विली क्या होता है? ये तो आप बता दोगे, फिंगर्स शेप्ड लाइक आउटग्रोथ इन द इनर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। व्हाट इज देयर लोकेशन? इट इज लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड फंक्शंस, व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट इज यूज्ड फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शंस ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स इनटू द ब्लड वेसल्स, ओके। तो इसका फंक्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, ओके। इसका क्वेश्चन है व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट? तो बाइल इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द फैट प्रेजेंट इन द फूड, ओके। नेक्स्ट है आपका नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कौन सा टाइप्स? यानी कि सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी डाइजेस्ट ओनली इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स नॉट बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ruminant डाइजेस्ट बाय बट नॉट, गिव रीजन व्हाई, ठीक है। तो क्यों? अब देखिए रीजन में इसमें क्या दोगे? क्योंकि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ह्यूमन जो होता है, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो वो बैक्टीरियाज ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही कर सकता है। तो इसमें गिव रीजन में दोगे बिकॉज द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव ह्यूमंस विद सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, बट इन ह्यूमंस द humans and the bacteria is not present for to digest the cellulose is known as is therefore the humans can't digest cellulose, okay। next है आपका
व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज से हम लोग तुरंत एनर्जी कैसे मिल जाता है हमें, ठीक है। तो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज द ग्लूकोज इट इज सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द, ठीक है, सिंपलेस्ट पार्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ग्लूकोज ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स से टूट चुका है, ठीक है। तो ग्लूकोज से हमें इसलिए इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल्स इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। च्यूइंग ऑफ फूड, बकल कैविटी, क्लीनिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टोमक में सेल होता है, वही क्लीनिंग ऑफ बैक्टीरिया करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फीकस, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो वन सिमिलरिटीज क्या होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स में। तो सिमिलरिटीज ये होगा कि बोथ amoeba and human beings do the process of ingestion, okay। and difference क्या होगा, difference ये होगा कि human beings have different organs for the digestion process while amoeba have no any digestive tract for the process of digestion, okay। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिमिलरिटीज में both organisms can नहीं ऐसे लिखोगे आप, the digestion process in both organism takes place, ये आपका सिमिलरिटीज हो जाएगा, ठीक है। डिसिमिलरिटीज में इसका लिखोगे, डिफरेंस में इसका ये लिखोगे कि ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके, to for the digestion process while amoeba has no any digestive tracts to digestion process, okay। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स है पहला, तो सैलिवरी ग्लैंड्स देखिए किसके साथ मैच होगा, तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होगा बाइल जूस नहीं होगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होगा, सलीवा सिक्रेशन, ओके। तो सैलिवरी ग्लैंड का सलीवा सिक्रेशन होगा, ठीक है। स्टोमक का क्या होगा, स्टोमक का हो जाएगा आपको एसिड रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर बाइल जूस सिक्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टम का क्या होगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ओके। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ओके। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, सो रिलीज ऑफ फेसेस, ठीक है। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया हुआ है, अब आपको इसको लेवल करना है, ठीक है, नाम लिखना है सबका। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर, ये हो जाएगा लीवर, ये हो जाएगा स्टोमक, ये हो जाएगा पैनक्रियाज, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो जाएगा रेक्टम, ये हो जाएगा एनस, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लेवल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा नो वी कांट सर्वाइव, ओके। We can't survive only on raw leafy vegetables and grass, ठीक है, because there are only few components found in grass or leafy vegetables or raw materials, ठीक है। So we need to survive ourselves, survive our lives, okay। So we need to survive our lives through the different components of food, okay। So we need different components of food to survive our life, ठीक है। And in grass or raw materials there is few components, only carbohydrates present in it, okay। That's why we can't survive our life through raw leafy vegetables, grass and what grass। तो इसका क्या लिखोगे आप आंसर, we can't survive
we can't survive only on raw materials, leafy vegetables and grass, because there are only particular components of food present in raw materials, leafy vegetables or grass. ठीक है, we needs all components of food to survive our life. Okay, so we can't survive, okay, only on raw or leafy vegetables. So the I hope क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया है. अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है कीवर्ड्स, क्वेश्चन या अदर किसी भी टॉपिक में, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे आपको न्यू चैप्टर, दैट इज फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. तब तक के लिए थैंक यू.